Okay, good afternoon, everyone. Jai Masi sabko. How does it feel being in the second last week of STBC? कैसे आप अनुभव कर रहे हैं? सेकंड लास्ट वीक है ये, लग How रहा many है of you are happy it's the second last week? कितने लोग खुश हैं ये सेकंड लास्ट क्लास के कारण? वाह, Oh, wow, you all want to go back home? क्या आप घर जाने की तैयारी कर रहे हैं? बहुत उत्साह से भरे Really? हैं। Okay, you all don't want to stay here? No? Okay. That's nice to see that so many of you want to go back home. और ये बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत लोग को देख रहे हैं कि वापस अपने घर जाएंगे। How many of you have started crying that it's the second last week? और कितने लोग रो रहे हैं कि ये दूसरा सप्ताह है, आंसू बहा रहे हैं। टुकड़ा टुकड़ा है किसी के अंदर? रोना आ रहा है, रोना आ रहा है। अन्ना गारू, you're crying? Right now you're crying. Most of the girls are crying, I heard. Okay. You're crying? So the girls are crying because you have to leave each other, but और you still want to go back home. जो लोग रो रहे हैं इसका मतलब एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं क्योंकि आप घर जाने वाले हैं। Yes. अभी से रोना आ गया। Now they are crying. Okay. Okay, so we are going to study about personal devotion and holiness. और आज हम लोग अध्ययन करेंगे व्यक्तिगत भक्ति और पवित्रता के बारे में। So this week we'll be studying about personal devotion and holiness. और हम इस सप्ताह में व्यक्तिगत भक्ति और पवित्रता के बारे में हम देखने पाएंगे। Are you all excited to learn about this? क्या आप लोग उत्साहित हैं इसको सीखने के लिए? Yes. Okay. So we'll just pause for a word of prayer and we'll begin with prayer. Okay. और हम लोग प्रार्थना के साथ इसको प्रारंभ करेंगे। Father, we thank you for this time. पिता परमेश्वर, हम आपको इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you for the opportunity to learn. और धन्यवाद सौभाग्य के लिए हम जो सीखने जा रहे हैं। We thank you, God, that you have created us to be a holy generation, a royal priesthood. प्रभु, आपने हमें इसलिए चुना कि प्रभु जी हम पदधारी याजकों के समान ठहरने के लिए। You desire holiness and truth and purity in our whole being, oh God. और प्रभु आप हमारे जीवन चाहते कि हमारे जीवन में पवित्रता और खुदाबंद समर्पण निष्ठा के साथ हम आगे बढ़ सके। And you have set us a standard, be holy as I am holy. प्रभु जिस प्रकार आपने कहा जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। And we thank you, Holy Spirit, for your work of sanctification in our lives. और हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो हमें हमारे जीवन को नया बनाते हैं और पवित्र करते हैं। We thank you for your work of sanctification in our lives. प्रभु आपकी धार्मिकता के लिए हम धन्यवाद, पवित्रकरण के लिए धन्यवाद करते हैं। And we pray that even as we learn जब हम धन्यवाद कर जब सीखते हैं about how to spend time with you and in your presence and your word, कैसे हम अपने समयों को आपके वचन में और आपकी उपस्थिति में व्यतीत कर सके। we pray, Holy Spirit, that you will speak to us, you will impart the truths to us. और पवित्र आत्मा आप हमारे से बातचीत करिए ताकि आपकी सत्य बातें हमारे जीवन प्रकट हो सके। That we will not just be learners of your word, but we will also be doers. प्रभु जी हम केवल सीखने वाले नहीं बल्कि खुदावंद उस वचन के अनुसार करने वाले बन जाए। And that we will be a people who hunger and thirst for more of your presence and for more of your word in our lives. प्रभु जी हम और भी भूख और प्यास के साथ आपकी उपस्थिति में आपके वचन को सीखने वाले बन जाए। Thank you for hearing our prayer. धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. Okay, so we're going to be studying about daily devotion, how to do daily devotion. और हम लोग सीखने पाएंगे कैसे हम अपने जीवन के अंदर दैनिक भक्ति को करने पाएंगे। So we're going to look at some practical ways. और हम कुछ प्रायोगिक बातों को देखने पाएंगे। How to spend time alone with God. कैसे हम परमेश्वर के साथ एकांत में समय व्यतीत कर सकते हैं। And to live a life of constant devotion to God. ताकि हम एक अपने जीवन में वो भक्ति का दैनिक जीवन में व्यतीत कर सके। So when you talk about this word or say devotion, what does it mean? और जब हम कहते हैं कि जो भक्ति के बारे में उसका अर्थ क्या हम समझते हैं? भक्ति। What is the meaning of devotion? ध्यान करना या भक्ति के बारे में क्या बताते हैं आप?
Sorry? Concentrating on one thing, okay? एक चीज पर हमको केवल ध्यान करना. What is devotion? Showing our love, okay? भक्ति का मतलब है कि हम अपने प्रेम को दर्शाना और Okay, spending time alone with God. अकेले परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करना. और कुछ बोल है? Submission, okay? अधीनता. Samarpan, yes. Submission. Submitting, surrendering, okay? समर्पण करना. So the word devotion basically means love. और जो भक्ति का जो हम देखते हैं उस शब्द का अर्थ को कि परमेश्वर के साथ प्रेम या उससे प्रेम करना. In general, it basically means when you're devoted to someone or something that you love that person or you love that thing. भक्ति का मतलब यह है कि हम किसी के साथ जब जुड़ जाना है, सामान्य तौर पर होता है कि उसके प्रति हमें क्या करना है, समर्पण के साथ उस निष्ठता को, प्रेम को दिखाना है. We also show loyalty. और उसके साथ साथ हम उस निष्ठता को हम दिखाते हैं. There is commitment, passion. और हमारे अंदर जोश और समर्पण, उत्साह. Or there is enthusiasm for that activity or, for that person. यानी उस व्यक्ति का उस व्यक्ति के साथ हम उन गतिविधियों को प्रस्तुत करते हैं और या अनुष्ठान करते हैं उसके साथ. So if you love cricket. उदाहरण के लिए आप क्रिकेट से प्रेम करते हैं. Or you love football. आप फुटबॉल से प्रेम करते हैं. Or you love to play the keyboard or the drums. और हो सकता है आप कीबोर्ड और ड्रम को बजाना पसंद करते हैं. Or you love to sing. और गाना पसंद करते हैं. And then you want to devote yourself to just learning that skill more. और आप लोग क्या करते हैं, उसके प्रति आस्था को बढ़ाते हैं ताकि आप बहुत और अधिक ज्यादा आप उस काम को कर सके. So you show more loyalty and commitment to learning that sport or that skill. और हमारे अंदर वो उत्साह और निष्ठा बन जाती है उस चाहे वो बजाने का हो, चाहे किसी के प्रति वो आस्था हमारे अंदर बना लेते हैं. And there is also passion and enthusiasm to excel in that. और उसके साथ हम देखते हैं कि हमारा जोश और उत्साह उसके प्रति हम रखते हैं. Devotion can also mean जो भक्ति या आस्था का जो दूसरा मतलब यह है, it also means observing or practicing, or expressing one's spiritual devotion to God. और हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत जीवन अनुभव करते हैं और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के प्रति भक्ति को अपने जानने का हम प्रयास करते हैं. So now when we are studying about devotion, अभी हम यहाँ पर आस्था या भक्ति के बारे में हम सीख रहे हैं. we are going to focus on how to be devoted in our study or towards God. हम कैसे परमेश्वर के प्रति हम अपने जीवन के अंदर उस भक्ति को, आस्था को बनाए रख सकते हैं. How to nurture a life of daily devotion. और कैसे हम दैनिक जीवन में उसका हम पोषण कर सकते हैं. So that is why we've called this daily devotion. और इसलिए हम उसको ध्यान करते हैं दैनिक भक्ति या दैनिक आस्था. So we're going to look at some practical, things that we can practice on how to be devoted daily to God. जब हम प्रायोगिक भाग को देखते हैं कि हम कैसे रोजमर्रा के जीवन में या दैनिक जीवन के अंदर किस प्रकार उस आस्था को, भक्ति को बरकरार रख सकते हैं या प्रयोग में ला सकते हैं. And these practices that we are going to learn, और जब हम ये प्रयोग को जब सीखते हैं, it will be something that is more foundational, essential for us. और जो कि हमारे लिए बड़ी एक बुनियादी बातों को हम उसको मानते हैं, समझते हैं. So it is regardless of age. और हम देखते हैं उस उम्र दराज के अनुसार. Or spiritual maturity. So all of us can practice these इसमें things. कोई उम्र दराज की कोई बात नहीं है, लेकिन हम सबको इस बात का, हम हर एक प्रत्येक जन को इस बात का प्रयोग में लाना है कि किस प्रकार परमेश्वर के प्रति हम आस्था को रख सकते हैं. So before we look at some of the practices that we can do to have our daily devotional time with God, और हम जब उन प्रायोगिक चीज को देखने के पहले हम इस बात को समझना है कि हमारे जीवन के अंदर दैनिक आस्था या भक्ति वो है क्या चीज.
So we're going to look at few of those things. कुछ बातों को हम देखने पाएंगे। So a life of devotion is basically a life of discipline. और दैनिक आस्था या भक्ति वो है कि हमारे अंदर अनुशासन। So when you want to be devoted to God or spend time with God daily, और जब हम रोज अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं, ध्यान करते हैं, आस्था करते हैं, it's a life of discipline. और वो हमारे जीवन का, वो हमारा अनुशासन का जीवन है। That means, you say, God, I'm going to spend time every day in the night at 9 o'clock or 10 o'clock. You keep to that. That is a disciplined life. अगर हमने किसी बात का निर्णय लिया है कि मुझे 9 बजे या 9:30 बजे परमेश्वर की उपस्थिति में समय को व्यतीत करना है, वो है एक भक्ति का जीवन जो अनुशासन का कहलाता है। Or you plan to get up at 4 a.m. or 5 o'clock in the morning and spend time with God. That's a disciplined life. अगर आपने निर्णय लिया है कि आप सुबह 4 बजे या 5 बजे उठकर परमेश्वर की उपस्थिति में समय को व्यतीत करना चाहते हैं, उसके साथ भक्ति करना चाहते हैं, वो एक आपके जीवन के अंदर को अनुशासन है। So a life of spiritual devotion, और जो भक्ति का जो जीवन है, it's a life of spiritual discipline. और वह आत्मिक भक्ति का जीवन को हम देखते हैं, वो आत्मिक अनुशासन का जीवन है। Look at 1 Timothy chapter 4 verse 7. पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय 7 पद में देखते हैं। Paul is writing to Timothy, और पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखकर बता रहा है, and he says, exercise yourself towards godliness. और वो कहता है कि अपनी भक्ति की साधना करो परमेश्वर के लिए। If you look at it in other versions, दूसरे शब्दों में हम देखते हैं, दूसरे जो अनुवाद में देखते हैं, in the English Standard Version, और जो कि इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन के अंदर हम इंग्लिश भाषा में देखते हैं, it says, train yourself in godliness. और वहां लिखा है कि अपने आप को भक्ति के लिए प्रशिक्षित करना है। In the NASB, और जो NSB इंग्लिश जो वर्जन में है, says discipline yourself यहाँ पर लिखा अपने आप को अनुशासित करो for the purpose of godliness. परमेश्वर के उद्देश्य के लिए। So here, a devoted life, और यहाँ पर जो भक्ति का जो जीवन है, or a godly life, और यह परमेश्वर के लिए है। it doesn't mean that it just happens immediately after we've accepted the Lord Jesus as our personal अगर Savior. हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी बातें जल्दी से हमारे जीवन में आ जाएगी। We will not immediately become disciplined. और हम एकदम से अनुशासित नहीं हो पाते हैं। We will not become godly. हम एकदम से परमेश्वर के जैसा नहीं हो जाते हैं। It is so, and we will not just be too, devoted to God. और हम परमेश्वर के लिए वहां पर आश्रित, उसके भक्ति के लिए आश्रित नहीं हो जाते। We need to train ourselves. हम क्या करते हैं, अपने आप को प्रशिक्षित करते हैं या तैयार करते हैं उस काम के लिए। Like the word of God says. जैसे परमेश्वर का वचन बताता है, Says train yourselves. अपने आप को प्रशिक्षित करो। That means exercise yourself. इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन के अंदर अभ्यास में लेके आना है। And discipline yourself for godliness. और हमें क्या करना है, परमेश्वर की भक्ति के लिए हम अनुशासित कर रहा है। So it does not just come automatically. ये केवल अपने आप नहीं आ जाती है। It's something that we have to be constantly disciplined about. इसका मतलब ये है कि हमें उस पर ध्यान देना है, उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना है ताकि उस अनुशासन को लेके आ सके। How many of you exercise? कितने लोग व्यायाम करते हैं सुबह, शारीरिक व्यायाम? So what do? You go to the gym or ladies? How many of you exercise? कहाँ पर करते हैं आप लोग कहाँ करते हैं व्यायाम, लड़की लोग? कितना लोग exercise करते हैं ladies? कितने लोग हैं? नहीं, घर पे ठीक है, but यहाँ करते हैं क्या? यहाँ पे या घर पे कितने लोग exercise कितने लोग करते करते हैं? हैं सुबह उठकर? Only 2 people. केवल 2 लोग। Oh my gosh. So guys, how do you exercise? और यहाँ आप लोग कैसे करते How many हैं? of you go to the gym? कितने लोग जिम जाते हैं? एक। How many of you, how the others, how do you exercise? और बाकी लोग कैसे आप अभ्यास करते हैं, शारीरिक व्यायाम कैसे You करते are- हैं? Huh? At home, how do you exercise at home? हम घर में कैसे करते हैं? Huh? हैं? Oh, you do running and swimming. Very good. और आप तैरते हैं पानी में और Oh, दौड़ते you do हैं। push-ups, okay? ओके, आप बिल्कुल पुशअप्स करते हैं। What about the others? No बाकी लोग क्या exercise? करते हैं?
मैंने काम नहीं पूछा, एक्सरसाइज पूछा. आपकी शारीरिक अभ्यास No, नहीं, no. वैसा नहीं. No, exercise is very different from work. काम अलग है और शारीरिक व्यायाम अलग है. Yes. The doctors will tell you exercise is different from work. और डॉक्टर बताते हैं ये आपके काम से हटकर है शारीरिक व्यायाम. Girls, how many of you, only 3 or 4 of you do exercise? केवल 2-3 लोग करते हैं, लड़की लोग. What exercise do you do? आप कौन सा एक्सरसाइज करते हैं? Cycling, साइकिलिंग, jumping, skipping. स्किपिंग, Every day, रस्सी कूद. every day. Very good. Sorry, running, रनिंग, दौड़ते हैं. bodily exercise. You do exercises. Okay. How many of you walk? कितने लोग चलते हैं? Means in सुबह the उठकर. park. In the park, पार्क half में. an hour. पार्क में आधा घंटा. No, no, cricket or not. क्रिकेट Walking, नहीं, walking. How long? कितना चलते हैं आप? 1 hour, okay. 1 hour. Half an hour. Just walking around the park. Okay, nice. Okay, और कौन? How many exercise, right? Why didn't you put up your hand? How many of you walk in the park and just go for कितने लोग walking? पार्क में घूमते हैं, घूमने घूमने जाते हैं, घूमने नहीं, घूमने जाते घूमने हैं, नहीं, घूमने जाते हैं. घूमने नहीं, एक्सरसाइज. चलने के लिए. हाँ, चलने के चलने के लिए. लिए जाते हैं. घूमने के लिए, फिरने के लिए नहीं. हाँ, और घूमने केवल ऐसा घूमने नहीं, चलने के लिए जाते हैं पार्क में. आधा घंटा, 1 घंटा. Okay, so some of you do exercise, right? कुछ लोग क्या शारीरिक व्यायाम करते हैं. ध्यान सुनिए. So, are you disciplined in that area? क्या उस क्षेत्र में आप अनुशासित हैं या अनुशासन का पालन करते हैं? Some of you who go to the gym, you have to go because you paid money, right? So you have to go. कुछ लोग जो जिम में जाते हैं क्योंकि वहाँ पैसा देना पड़ता है, इसलिए वहाँ रेगुलर जाना है. But how many of you regularly, do have the discipline of walking in the park? और कितने लोग जो है Good. अनुशासित है पार्क में चलने के लिए? Is it easy to do Yeah. it every day? क्या रोज करना आसान है? It's easy for you. You enjoy it. ओके, आपके लिए Very आसान है, आप मजा करते हैं उसमें. और कोई? I walk I take a evening half an hour brisk walk for my health. और मेरे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए Yes. मैं आधा घंटा चलती हूँ मैं. I have to walk. The doctors have told me I have to walk. हाँ, डॉक्टर ने मुझे बताया है कि आप मुझे चलना ही है. So I have to force myself to walk even those days when I don't like walking. और उन दिनों में मैं चलना पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मुझे मजबूरी में उस काम को करना पड़ रहा है. And some days when I have a lot of work to do, I think I feel better that I sit and finish that work than go for walking. और Some days when when I feel I have a lot of work to do, I prefer. कई बार ऐसा मुझे महसूस होता है कि बहुत सारे काम करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो मुझे बैठना भी पड़ता है. नहीं, बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि काम पूरे कर सकती हूँ आधा घंटे चलने के बगैर. मैं वॉकिंग के लिए जाऊंगी तो आधा घंटे वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए आधा घंटे में मैं काम पूरा कर दूंगी. ठीक है, बट I realize that when I walk, my health is so much more better. और जब मैं चलती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है मेरे शरीर में कि मैं अपने आप को अच्छा महसूस करती हूँ. Yes, even if you're feeling very tired and exhausted. और हो सकता है मुझे थकावट हो, शरीर में थकावट हो, कमजोरी लगता हो. Or even if I'm having a lot of a heavy head because of the stress and the work and everything. और जब ज्यादा काम होने के कारण, तनाव आने के कारण, तब उस अवस्था में भी when I walk, my health feels better after that. और मैं जब चलती हूँ तो मेरे शरीर में मैं अच्छा महसूस करती हूँ. So most days, I enjoy walking. और उन दिनों में मैं चलती हूँ तो मुझे बड़ा अपने जीवन में मजा को करती हूँ, अच्छा भी लगता है मुझे. And some of you said you enjoy doing physical exercise. कई लोग ने कहा कि शारीरिक अभ्यास करने में वो मजा करते हैं अपने जीवन में. And there is rewards of doing physical exercise. और जब हम शारीरिक तौर से काम करते हैं उसमें भी हम उसमें मजा करते हैं, आनंद करते हैं. No, there is rewards of doing physical और exercise. जब हम शारीरिक तौर से अभ्यास करते हैं उसमें हम उस रिवॉर्ड, Yes. उस हमें इनाम भी मिलता है.
Inam means no rewards in the sense your health is good. हाँ, इसका मतलब इनाम का मतलब है हम अपने हम शरीर को स्वस्थ पाते हैं, अच्छा लगता है हमें, And your mind is even alert. और आपका मन सतर्क हो जाता है उन बातों के लिए, फ्रेश ताजगी लगती है, And you don't feel tired and exhausted. और उसमें थकावट को महसूस नहीं कर पाते, कई बार तनाव से हम बाहर निकलते हैं। And somebody put up their hand and said they enjoy, doing physical exercise. और कई लोग अब शारीरिक अभ्यास करने में आनंद करते हैं, जिन्होंने कई लोग ने हाथ उठाया इसके लिए। So like we do physical exercise and have a discipline in that, और जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो उसमें हम अनुशासन हमारे जीवन को हम महसूस करते या देखने पाते हैं, या करते हैं। when we do physical exercise, you see that you are disciplined in that area. जब आप शारीरिक व्यायाम करते हैं तो आप उस क्षेत्र में आप अनुशासन को देखते हैं। नहीं. When you are doing physical exercise, जब आप शारीरिक व्यायाम करते हैं, you are disciplined in that area of doing physical आपके exercise. उस शारीरिक व्यायाम में आप अनुशासन करके आप अपने आप को करते हैं। So in the same way, इसी प्रकार when you are, doing your spiritual devotion to God, जब आत्मिक तरफ से देखिए, जब परमेश्वर के साथ आप भक्ति करने के लिए जब समय निकालते हैं and you enjoy it, और जब उसमें आनंद करते हैं, it will become something, an area that you are disciplined in. और इसका मतलब है आप इसी क्षेत्र में अपने आप को क्या कर रहे हैं, अनुशासित, उन क्षेत्र में आप अनुशासित कर रहे हैं। But when we are, being disciplined, we have to train ourselves to be disciplined. और हम उस अनुशासन को जो करते हैं तो इसका मतलब उसमें अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं अनुशासित करने के लिए। So for example, 8 o'clock is my walking time. उदाहरण के लिए 8 बजे मेरा घूमने चलने फिरने का टाइम होता है। My exercise, मेरा exercise का time 8 बजे रात को है, ठीक है? So whatever I'm doing, whatever work I'm doing, I leave it and I know that hey, I have to go for my walk. और मैं दूसरे कामों को छोड़कर मुझे वो 8 बजे चलना है, चल घूमने जाना है, चलना है, तो मैं दूसरे काम पर ध्यान नहीं करेगी, क्योंकि मुझे उस काम को पूरा करना है। And it becomes a practice. और वो एक मेरे लिए प्रयोग के समान हो गया है। And that practice is actually an area where I'm disciplining myself. और वो जो अभ्यास मेरे लिए वो मैं उस अभ्यास में मैंने क्या किया, अपने आप को अनुशासित किया उस कार्य के लिए। It's the same way when you are, having your personal time or devotion with God. जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर परमेश्वर के साथ आस्था रखने के लिए जब समय निकालते हैं, then you have to be disciplined in that area as well. उस क्षेत्र में आपको अपने आप को अनुशासित करना है। That means if you say, God, I'm going to spend time with you every day at 4 o'clock or 5 o'clock in the morning, we need to learn to be disciplined in that area. और अगर हम परमेश्वर से कहते हैं कि मुझे सुबह 4 बजे या 5 बजे समय को व्यतीत करना है आपके चरणों में, तो इसका मतलब यह है कि आपको उस काम के लिए अनुशासित करना होगा। Are you able to understand? आपको समझ में आ रहा है? So a life of devotion is actually a life of discipline. अगर भक्ति का जो जीवन है वो अनुशासन का जीवन है। When you have a disciplined life, you will also have you will notice that your life of devotion to God will also grow. और जब भक्ति का जीवन आप अनुशासन के साथ व्यतीत करते हैं, इसके बाद इस बात को भी जानना है कि आपका आत्मिक भक्ति का जीवन भी परमेश्वर के साथ आप अनुशासित कर रहे हैं। Now, why should we have daily devotion? क्यों दैनिक भक्ति की आवश्यकता है? Why? क्यों? Huh? Okay, to grow in your faith. विश्वास को बढ़ाने के लिए, to build a strong relationship with God, okay? परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए, to become more Christ-like, okay? परमेश्वर के समान बनने के लिए, मसीह के समान बनने के लिए। Yes, to hear from God. You want to know what to do in certain situations in your life, so you hear from God. परमेश्वर के द्वारा सुनने के लिए, उसके द्वारा सुनने के लिए। और anything else? Huh? So you become like him, okay? उसके समान बनने के लिए। Huh?
To grow in your spiritual life, yes, to grow in your spiritual life. आत्मिकता में बढ़ने के लिए। So we look at all of these reasons which you mentioned are good, and yes, it is important. और आप सबने अच्छी बातों को बताया और ये बहुत महत्वपूर्ण है। There are two important things that are mentioned in your notes. और मैंने आपके उस नोट्स में उस बातों को मैंने चिन्हित किया है। And there are several other reasons, but only two is mentioned here. और दो बातों को मैंने यहाँ पर चिन्हित किया है। The first one is to know and love God intimately. और सबसे पहली बात वह है कि परमेश्वर को निकटता से जानना और उससे प्रेम करना। So just like, some of you exercise because you can have good health and live long. और कुछ लोग जो शारीरिक अभ्यास करते हैं इसलिए करते हैं कि वो उनका शरीर मजबूत रहे और ज्यादा समय जीवन को व्यतीत कर सके। I exercise because it's good for my health. और मैं जो एक्सरसाइज जो अभ्यास करती हूँ मेरे स्वास्थ्य के लिए। So the same way, when we have our daily devotion with God, जब हम परमेश्वर के साथ रोज भक्ति का जीवन जब बनाए रखते हैं, it's our desire to maintain a relationship with God. और इसका हमारी इच्छा ये है कि हम प्रभु के साथ व्यक्तिगत एक रिश्ते को गहरा बनाने के लिए, The more we know Him, जितना अधिक हम उसे जानते हैं, the more we can love Him, worship Him, obey Him, and honor Him in our lives. उतना अधिक हम उससे प्यार कर सकते हैं और उसकी आराधना कर सकते हैं। So when you fall in love with somebody, अगर मान लीजिए किसी के साथ आप प्यार में गिर जाते हैं या प्यार हो जाता है, what would you like to do most of the time? तो हमेशा क्या करेंगे आप? उसके साथ कैसा करें? आप किसी के साथ प्यार हो गया, You want to spend time with that person, right? आप उस व्यक्ति के साथ समय को व्यतीत करेंगे You look for opportunities where you can meet that person. और आप ऐसा समय को ढूंढेंगे कि उसकी क्या जरूरत है उसको पूरा करने के लिए। No, you look for time to meet with that person. और हम ऐसा समय निकालेंगे कि उस व्यक्ति से मिल सके। Or, you'll be texting or messaging or talking on the phone. और क्या करेंगे? मोबाइल से उससे बात करने का प्रयास करेंगे, उससे संदेश भेजेंगे। And you're constantly in communication with the person. और हमेशा क्या करें? उस व्यक्ति के साथ संपर्क बनाने के लिए हमेशा ध्यान करते रहेंगे। Why? Because you want to know that person more. क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को आप अधिक जानने के लिए You also love that person. और साथ में उससे प्रेम करने के लिए। The same way, we all desire to have a devotion with God. और हमारे अंदर वो इच्छा ये है कि हम व्यक्तिगत तौर से उससे मिलने के लिए, उसके साथ रिश्ता बनाने के लिए और उसकी आराधना करने के लिए। Why do we want to have a devotion with God? क्यों परमेश्वर के साथ हमें भक्ति करना है? Because we desire to know Him more. क्योंकि हमें उसे अधिक जानने के लिए। And when we desire to know Him more, जब उसको हम जब अधिक जानने के लिए जब प्रयास करते हैं, we learn to worship Him and love Him and trust Him more. और हम क्या करते हैं? अधिक उससे प्यार करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और उसकी आराधना करते हैं। And we also grow spiritually. और साथ साथ में क्या है? आत्मिक तौर से हम वृद्धि करते हैं, बढ़ोतरी पाते हैं। We grow spiritually strong. और आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं। So another reason why we should maintain a life of daily devotion, क्यों हम अपने दैनिक जो आस्था को हमें बरकरार रखते हैं, इसका कारण यह है कि आत्मिक रूप से मजबूत होना। yes, to grow in our inner man, in our spirit man. हम अपने आंतरिक व्यक्तित्व जो आत्मिक रूप से है उसको विकसित करने के लिए। And when we are spending time daily in our devotional time with God, जब हम रोज परमेश्वर के साथ उस आस्था को बनाए या भक्ति करने के लिए हम जो व्यतीत करते हैं, like some of you said, we become more Christ-like. We are transformed in the way we think, the way we live, the way we react. कुछ लोग ने कहा कि मसीह के समान बनने के लिए जो जैसा वो काम करता है, जो अपने प्रभाव को दूसरे पर डालता है, उसकी पहचान में बनने के लिए। And also, we are equipped to serve God effectively. और ताकि परमेश्वर की सेवा ढंग से प्रभावशाली होकर करने के लिए। So how many of you want to serve God? कितने लोग परमेश्वर की प्रभु की सेवा करना चाहते हैं? So if you want to serve God, then you need to spend time daily with God. अगर आपको प्रभु की सेवा करना है तो रोज उसके साथ समय को व्यतीत करना होगा। Look at what Peter writes in 2 Peter chapter 3 verse 18. देखेंगे दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 18 पद में क्या लिखा है।
Peter is encouraging the believers और पतरस विश्वासियों को प्रोत्साहित कर रहा है to grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus और Christ. वो मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ने के लिए। So he's saying we are to grow. That means we are to increase. और वहां पर बता रहा है कि हमें बढ़ना है, हमें बढ़ोतरी को प्राप्त करना है हमारे जीवन के So अंदर। what are the areas he's saying that we need to grow in? कौन से क्षेत्र में बढ़ने के लिए बता रहा है? कौन से क्षेत्र में? What are the two things he's mentioning here? यहाँ पर दो बातें बताया गया है, Grace and knowledge. Okay. परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी पहचान में बढ़ने के लिए। Now grace has different meanings in the New Testament. और नए नियम में अनुग्रह के बारे में अलग अलग अर्थ को बताया गया है। And one of the meanings of grace in the New Testament और नए नियम में जो अनुग्रह का जो अर्थ है is divine character. और वो दैविक चरित्र के बारे में। You studied Minister's Foundation course, right? आपने मिनिस्टर फाउंडर्स कोर्स को पढ़ा है? Yes or no? Yes. So you studied about the three meanings of grace in the New Testament. और नए नियम में तीन अनुग्रह के अर्थ के बारे में आपने पढ़ा। What is the three meanings of grace in the New Testament? नए नियम में उस अनुग्रह का तीन अर्थ को बताया गया, वो कौन सा है? Divine favor, yes. One is divine favor. Second one, दूसरा क्या है? डिवाइन divine character, yes. दैविक चरित्र। And third one, तीसरा third one, divine favor, divine character, divine enablement or divine empowerment. और वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर का जो परमेश्वर का डिवाइन एम्पावरमेंट के बारे में बताया गया है। Divine empowerment in Hindi बोलिए आप। that is it. Divine empowering. Empowering means giving them power. Power. Okay. What is the Hindi word for divine empowerment? शक्ति देना. Yes. चरित्र गुणवंत को देना और चरित्र शक्ति सामर्थ को प्रदान करना। सामर्थ. Yes. Yes. Divine empowerment. Okay. So here we are talking about divine character. और यहाँ पर हम दैविक चरित्र के बारे में हम बात करते हैं। So Peter is saying we have to grow in the grace, means grow in the divine character, be like Jesus. पत्रस यहाँ पर जो अनुग्रह के बारे में बता रहा है कि दैविक चरित्र जो यीशु मसीह का है चरित्र उसके बारे में। And also in the knowledge. और साथ में ज्ञान की बातें बता रहे, ज्ञान में बढ़ने के लिए। So what is the meaning of knowledge? ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का अर्थ क्या है? Right, grow in your knowing or your understanding of God. और ज्ञान में मतलब है परमेश्वर के समझ और उसके पहचान में बढ़ना। This knowledge is not about just intellectual knowledge, just knowing about God. और ये एक जो ज्ञान जो है परमेश्वर को जानने के बारे में। But it's a knowledge where you're understanding God more deeply and personally. और आप क्या है कि हम परमेश्वर के उस परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर से गहराई से जानना और उसको समझना। And recognizing, who He is. और उसे पहचानना कि वो कौन है। Through your personal relationship with Him. आपके व्यक्तिगत जीवन के द्वारा। So we saw two important reasons. और ये दो महत्वपूर्ण जो कारण है। Why should we maintain daily devotion with God? क्यों हमें परमेश्वर के साथ दैनिक रिश्ता या आस्था को बनाए रखना। Now we need to understand that we are not just physical beings. और हम ये इस बात को समझना है कि हम केवल एक शारीरिक तौर से मनुष्य होने के कारण What else are we? और हम क्या है? What kind of beings are we? हम किस प्रकार के लोग हैं जब शारीरिक तौर से है, लेकिन और क्या है? Yes, we are also spiritual beings. और साथ साथ हम आत्मिक व्यक्ति भी है। We are primarily spiritual beings. और हम जो आत्मिकता में हम प्राथमिक तौर से परमेश्वर के लिए पाए जाते हैं। So we understand that the Bible teaches us. और हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर का वचन क्या सिखाती है। It teaches us that we are spirit beings. और ये सिखाता है कि हम
एक आत्मिक रूप से उस स्वाभाविक मनुष्य के रूप में हम पाए जाते हैं। So what do we mean when we say we are spirit beings? और क्या हम उसका अर्थ क्या है कि हम आत्मिक मनुष्य तो क्या है हमारे अंदर? What do we mean when we say we are spirit beings? हम इसका मतलब क्या है कि हम आत्मिक मानव है या आत्मिक रूप से, इसका मतलब क्या है? Sorry? We live by the spirit. Okay. What do we mean when we say we are spirit beings? आत्मिक जो मानवता उसका मतलब क्या है? ये जो स्वाभाविक है, हम शारीरिक तौर से आत्मिक मानवता क्या है? Sorry? Filled with the Holy We Spirit. are filled with the Holy Spirit. Okay. The Spirit of God dwells in us. परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। Yes, we are not only just body, but we are body, soul, and spirit. और हम शारीरिक नहीं बल्कि उसमें क्या है? शरीर और प्राण और आत्मा भी। So, our spirit man basically communicates or connects with God because God is spirit. और परमेश्वर आत्मा है और क्या करता है? हमारी आत्मा उसके साथ एक रिश्ता को कायम करता है, करने के लिए उस साथ में रहता है। So our spirit man is the part of us that basically connects with God. हमारे अंदर जो आत्मा है वो इसलिए है कि हम परमेश्वर के साथ संबंध को बनाएं। Can you see your spirit person? क्या एक आत्मा वाला व्यक्ति को देख सकते हैं क्या? Can you see your own spirit? क्या हम अपनी आत्मा को देख सकते हैं? No, it's a hidden person, right? वो छिपा हुआ मनुष्य तो है, But it is a real person. That is who you are as well. और वो एक सही व्यक्ति है और हम इस बात को बताता है कि हम है कौन। 1 Peter chapter 3 verse 4. पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 4 पद। Can all of you read that quietly by yourself, please? 1 Peter chapter 3 verse 4. पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 4 पद को पढ़े। नहीं, आपने आप पढ़िए सब लोग। मन में पढ़े। So what kind of what person is spoken of here? या कौन से व्यक्ति के बारे में बताया गया है? Yes, what is it mentioned here? वहां पर क्या The बताया person गया is है? mentioned as the व्यक्ति hidden person, right? वहां किस व्यक्ति के कैसे व्यक्ति के बारे में बताया? छिपा हुआ। Yes, so what is a hidden person in you? आपके अंदर कौन सा छिपा हुआ व्यक्ति है? Your spirit is the hidden person that is in you. आपकी जो आत्मा है वो छिपा हुआ रूप है। So sometimes in the Bible, your spirit man is also referred to as heart. और In the Bible, बाइबल के अंदर your spirit man is also mentioned as heart. और जो आंतरिक जो मनुष्यत्व है वो एक हृदय के रूप में बताया गया है। So sometimes it's mentioned as spirit, sometimes it's mentioned as heart. कई बार आत्मा के बारे में बताता है, कई बार वो हृदय के बारे में बताता है। So when you see heart there, it can also mean your inner spirit man. कई बार वो आपके हृदय के बारे में बता रहा है, इसका मतलब ये छिपा हुआ और जो आत्मिक मनुष्यत्व के बारे में, Which is your inner person or your hidden person. और वो छिपा हुआ है आपका गुप्त मनुष्यत्व है, But that is a real person. लेकिन वो एक सही व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। Now here in 1 Peter chapter 3 verse 4, और पहला यहाँ पर हम देखते हैं पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 4 पद में, our spirit man, हमारा जो आत्मिक जो मनुष्यत्व है, it has certain characteristics. और उसका कुछ हम देखते हैं, स्वभाव को हम देखने पाते हैं। So what are some of the characteristics of your spirit? और कौन सा वो चरित्र है? वो है your आत्मा का चरित्र क्या है? इसमें क्या लिखा है? आत्मा का चरित्र क्या है?
Yes, a gentle and a quiet spirit. और उसका आत्मिक स्वभाव क्या है? वो सद्गुण है, That वो means शांतिपूर्ण है। your spirit person also has characteristics. और आत्मिक जो आपका आंतरिक जो मनुष्य है उसके अंदर क्या है? शांति का सद्गुण और चरित्र गुण पाया जाता है। And here it's mentioned that our spirit has the characteristics of being gentle or quiet. और आपका जो आत्मिक व्यक्तित्व है वो उसके अंदर सौम्यता पाई जाती है और शांति से भरा हुआ होता So है। some of you can have a gentle and a quiet spirit. कई बार कई लोग के जीवन में देखते हैं कि उसका जो उनका आत्मा सौम्यता होता है और शांति से भरा होता है। Some of you can have a spirit that is generous and courageous, और किसी के अंदर आत्मा उदारता का होता है और धीरज का होता है, or endurance and kindness. और उसके अंदर दयालुता का होता है और सहनशील का शक्ति भी होता है। So whatever is your character of your spirit man, और जो कुछ चरित्र आपके अंदर जो आत्मिक मनुष्य तो है, it is shown in the outside, in your actions and your reactions. और वो अंदर का जो व्यक्ति क्या कहते हैं आपके द्वारा वो बाहर उन बातों का प्रभाव डालता है या दिखाई देता है। So whatever is the characteristic in your spirit man, और आपके आत्मिक व्यक्ति के अंदर जो चरित्र है, it is expressed through your body और वो आपके शरीर के द्वारा प्रभावित होता है, and it's expressed through your soul, which is your mind, emotions and your और feelings. जो कि आपके उस आत्मा और जो भावना के द्वारा प्रकट होता है। So that is the true personality of your who you are as a person. और आप कौन ऐसा व्यक्ति है उसके उस कार्य के द्वारा प्रकट करता है सत्य बातों को। So your who you are in your spirit man is basically who you are seen as an outside person in your physical. आपका आत्मिक व्यक्तित्व कैसा है वो आपके शरीर के द्वारा प्रकट होता है या दिखाई देता है। And this verse also says और ये वचन इस बात को बताता है यहाँ पर that those of you who have a gentle and a quiet spirit और जिनके पास वो सौम्यता और शांति का जो गुण पाया जाता है in your spirit man, और आपके आत्मिक व्यक्तित्व में, these are precious and delightful before God's eyes. और वो परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। And these characteristics are something that will never die or fade away. और ये वो बातें वो जो आत्मिक बात है वो कभी मरता नहीं और वो कभी नष्ट नहीं होता है। Now some of us are very noisy people. कुछ लोग बड़े आप देखते हैं कि समझ को रखने वाले व्यक्ति होते हैं, बुद्धि से भरे होते हैं। No, some of us are very noisy people. कुछ लोग के बड़े जो शरारती होते हैं। Some of us are always, fighting and arguing and complaining. और कई बार क्या होता है, कई लोग कंप्लेन करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, हमेशा उनका काम है। And we don't keep, for any or everything, we are always snapping back at people or always saying something negative or showing our anger. हमेशा उस व्यक्ति का करता दूसरे के प्रति क्रोध को दिखाता है और हमेशा उसके विरुद्ध में बातचीत करता रहता है। And we see that, what kind of a person that God likes. Does he like such a person? क्या परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को चाहता है? What kind of a person does God like? What is mentioned in 1 Peter chapter 3 verse पहला 4? पत्रस में 3 अध्याय 4 में किस व्यक्ति के बारे में बताया गया है? कौन से व्यक्ति के बारे में बताया गया है? कैसे व्यक्ति परमेश्वर पसंद करता है? Yes, somebody who is gentle and a quiet spirit. परमेश्वर किन लोगों को चाहता है? जो दीनता से और शांति से अपने सद्गुण को प्रकट करता है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर चाहता है। So even if someone shouts at you, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने चिल्लाए आपके ऊपर, then you are very gentle and quiet. You don't say anything. तो वो व्यक्ति चिल्ला रहा है लेकिन आप क्या होता है कि आप शांतिपूर्वक उससे सौम्यता से बात करते हैं। So gentle and a quiet spirit is great work in God's sight. और परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर ऐसे सौम्य और शांति के व्यक्ति को चाहता है। So if you are not a person with a gentle and a quiet spirit, अगर आपके अंदर वो सौम्यता और शांति नहीं है, चरित्र नहीं है, then you can ask God to give you that kind of a gentle and a quiet अगर spirit. आपके अंदर नहीं है तो परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मेरे अंदर उस चरित्र को प्रदान कर। How many of you want to be precious in God's sight? आप कितने लोग परमेश्वर की ऊपर दृष्टि में अनमोल बनना चाहते हैं? Yes, all of us, right? सब लोग बनना चाहते हैं। Then what kind of a spirit you should have? तो आपके अंदर कौन से आत्मा होना चाहिए? Quiet spirit. So from now on, there's no fights in your house. अब आपसे क्या आज से क्या करना है? आपके घर में आपकी जगह में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए।
Even in the Bible college or in the hostel, there's no fights. हॉस्टल या आपके जो बाइबल कॉलेज में भी No fights, right? कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा करते हैं क्या? Because you have a gentle and a quiet spirit. क्योंकि आपके अंदर वो दीनता है, सौम्यता, शांति का आत्मा है. So some of us who don't have it can ask God, say, God, I want to be precious in your sight. अगर आपके अंदर वो दिखाई नहीं दे रही तो परमेश्वर से मांगे कि वो परमेश्वर आपको दिखाए ताकि वो चरित्र आपके अंदर आ Say, सके. God, I want to have a gentle and quiet spirit because I want to be precious in your sight. प्रभु मैं आपके दृष्टि में अनमोल बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे शांति और सौम्यता का सद्गुण मुझे दे. And also that God, that people will come to know you through just looking at my life. ताकि परमेश्वर के जो लोग हैं आपको देख सके, आपके जीवन को देखने पाए. And we see in scripture also और यहाँ पर वचन इस प्रकार बताता है और that when we are born again, जब आप नया जन्म पा लेते हैं, we become a new creation, right? आप एक नई सृष्टि हो जाते हैं. Yes or no? हाँ या नहीं? So in which part of you are new? तो कौन सा ऐसा जब भाग है जिसमें आप नए हो जाते हैं? In your spirit man, not in your mind and in your body. आपके शरीर मनो शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में भी. So you are born again in your human spirit. क्योंकि शरीर में आपका शरीर जो है एक मानव शरीर है. मानव शरीर के अंदर एक आत्मिक हम शरीर को भी देखते हैं. But when you're born again in your human spirit becomes new. It doesn't mean it's just perfect. और जब नया हो जब हम देखते हैं, जब नयापन आ जाता है हमारे जीवन में, आपका जो शरीर वो पुराना शरीर फिर नहीं रहता है. नहीं, जब आपका आत्मा नया हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरह से नया हो गया है. You have to nurture it and you have to develop it to become more like God. हमें क्या करना है? हर रोज उसका पोषण करना है ताकि परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर के समान होने के लिए. We need to grow spiritually even in our spirit man. हमारे आंतरिक मनुष्यत्व में हमें क्या कर रोज पोषणता को देना है, बढ़ने के लिए, समानता उसकी समानता में आने के लिए. So the Bible tells us that we have to be transformed in the renewing of our minds. परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जब अपने जब शरीर को, अपने जब मन को जब नया करते हैं, बदलते हैं. अब वचन कहता है कि हमारा मन को नवीकरण करना चाहिए रोज. Okay? Not just only our minds, but also we need to grow spiritually in our spirit man. हमारे केवल मन को ही नयापन बनाते नहीं चलना, बल्कि हमारे आत्मा को भी हमारे आत्मिक रूप से भी बढ़ाने के लिए उसको नया करना है. So we need to grow spiritually. ताकि हम आत्मिक तौर से बढ़ सके. So do you take care of your physical bodies? जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं. कैसे देखभाल करते हैं? How do you take care of your physical bodies? कैसे हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं? Exercise, अभ्यास के द्वारा, rest, food, आराम right? के द्वारा और भोजन के द्वारा. Food is very important. Even if you don't exercise, food is very, very अगर हम important. शरीर में अभ्यास न करें, लेकिन खाना बहुत जरूरी है, हमें भोजन करना बहुत जरूरी है. So just like you nurture your physical bodies, इस प्रकार हम अपने शरीर का पोषण करते हैं, we also need to nurture our human spirit. और उसी प्रकार हमें आत्मा, जो हमारा व्यक्तित्व है आत्मा का, उससे भी हमें पोषित करना है. Just like we eat to gain energy and to live in our physical bodies, जिस प्रकार हम शरीर में भोजन खाते हैं और हमारे अंदर ऊर्जा को हम प्राप्त करते हैं, the same way we need to even grow in our we need to grow spiritually and in our spirit man. और हमारे आंतरिक जो मनुष्यत्व को बढ़ाने के लिए, हमारी आत्मा को डेवलप करने के लिए हमें भी पोषण की आवश्यकता है. Now in Matthew chapter 4, when Jesus was tempted, जब यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो 32 समाचार 4 अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं. Jesus says it यीशु ने कहा, is written इस लिखा हुआ है, that man shall not live by bread alone, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, but by every word that proceeds from the mouth of God. लेकिन परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है. And look at 1 Peter chapter 2 verse 22. उसी प्रकार हम पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 2 पद में देखते हैं. Says Peter is writing to the believers. और पत्रस विश्वासियों को पत्र लिख रहा है. He says, as newborn babies desire for pure milk,
जिस प्रकार एक नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल दूध, आत्मिक दूध की लालसा करते हैं, pure milk of the word, that you may grow thereby. और उस निर्मल दूध की लालसा करना है ताकि हम क्या कर सके, बढ़ सके उद्धार में। So when Jesus is saying that man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from his mouth, from the word of God, what kind of food is he speaking about here? यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है कि केवल मनुष्य रोटी ही से नहीं बल्कि हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। किस बात को यहाँ पर बता रहा है? What kind of भोजन बता रहा है इधर? किस प्रकार का भोजन के बारे में? Spiritual food, right? Because he's saying that, he's comparing the physical bread to the word of God. और यहाँ पर बता रहा है जिस प्रकार हमें शारीरिक भोजन शरीर की आवश्यकता है, उसी प्रकार परमेश्वर के वचन के बारे में बताया गया है भोजन जो है। And look at 1 Peter chapter 2 verse 20, verse 2, chapter 2 verse 2. और पहला पत्र 2 अध्याय इसका 2 पद में हम देखते हैं वहां पर क्या लिखा है। He says newborn babies desire for what? Milk, right? इस प्रकार एक नया जन्म हुआ बच्चा उसको दूध की लालसा रखता है। So here is he talking about children or he's talking about believers? और यहाँ पर क्या विश्वासी के बारे में बता रहा है या बच्चे के बारे में बता रहा है? He's talking about grown up believers, और right? यहाँ पर जो विश्वासी बढ़ रहे हैं उनके बारे में। And what is he saying we should desire? हमें क्या लालसा रखना है? The pure milk of the word of God. जो निर्मल आत्मिक दूध की लालसा, जो परमेश्वर का वचन है, So that we can grow. ताकि हम बढ़ सके। So we'll come back and look after the break. Thank you. ब्रेक के बाद आके देखेंगे।